Welcome back students to the another session of oscillation. आज हमने अब तक प्रीवियस सेशन में लीनियर एसएचएम ऑसिलेशन जिसे हम एसएचएम भी कहते हैं। एसएचएम का मतलब जो मैं फिर से एक बार कह दूं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और उसके हमने टाइप्स पढ़े थे। लीनियर एसएचएम सेकेंड वाला टाइप हमने कंप्लीट किया था, दैट वाज एंगुलर एसएचएम, एंड द थर्ड टाइप विच वी हैव डन इज this was angular SHM. The third which we will going to do is the damped SHM. तो आज का हमारा टॉपिक है दैट विल बी रिलेटेड टू डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो आज हम लोग इस डैम्प्ड ऑसिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे। सो टुडे's टॉपिक इज दिस, व्हाट अबाउट द डैम्प्ड ऑसिलेशन। So damped oscillation, to understand the meaning of damped oscillation, let us do one thing. I'm just drawing it one support. So let us understand, this is the rigid support, this is the rigid support, and the rigid support has been attached with a spring. So let us understand, this is the spring. Okay, this is the spring, and the spring is being attached with a block. It is attached with a block. You can see here, this is the block, and the block is finally connected to a slab. This is the slab, and this slab is moving. This slab is, so this is the slab, and finally the slab has been dipped into a vessel. So understand this, this is the vessel, and the vessel is containing a water. You can just imagine, this is the water, it is dipped into a water. So what I'm doing, I'm just drawing a water. तो ये मैंने एक वाटर ड्रॉ किया हुआ है। So let us assume this is the water, the vessel is filled with a water. Okay, so इसको एक बार मार्किंग कर लेते हैं, this is the water, let's label the everything. So here this is a water, and this is the slab which will move up and down. This is the block. Here this is the spring, this is the spring. Now we have to displace the spring once from the mean position towards the vertically downward. So this is how we have stretched. So this is what the extension in a spring we have done it. So once the extension has been done in a vertical downward direction, we will observe a force inside the spring will get produced, which is known as a force in the spring, F spring, which is also called as a restoring force. If you remember, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि स्प्रिंग को अगर आप नीचे की तरफ उसे आप नीचे की तरफ उसे एक्सटेंड करेंगे तो स्प्रिंग के अंदर ऊपर के डायरेक्शन में x आपका नीचे के डायरेक्शन है, तो ऊपर की तरफ आपके एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। मैं ब्लू कलर से इंडिकेट कर रहा हूं कि आपने स्प्रिंग को ग्रीन कलर से कि कितना आपने इसको एक्सटेंड किया है। सो लेट अस एज्यूम कि आपने जो एक्सटेंशन दी है स्प्रिंग को वो है x एक्सटेंशन दिया है, x डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ स्प्रिंग को मूव किया है, उसी वजह से इसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस होगी F,
और वो फोर्स जो होगी इट इज गिवन बाय एफ रिस्टोरिंग एंड द वैल्यू फॉर एफ रिस्टोरिंग इज गिवन बाय माइनस के एक्स. ओके स्टूडेंट्स, माइनस के एक्स ये है स्प्रिंग. सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि द restoring force produced in a spring is given by F spring, and that is given by minus kx, as we know that this k is a spring constant. This is actually a spring constant. K is a spring constant. Okay student, also one more thing, you know very well कि नीचे वाला जो lower end of the system है which is a slab actually, जब ये स्लैब जब नीचे की तरफ अंडर वाटर जब वो डीप करेगा, जैसे ही पानी के अंदर वो जाएगा उसी समय वाटर इज अ फ्लूइड, वाटर एक फ्लूइड है, इट इज अ फ्लूइड, और ये एक विस्कस फोर्स अप्लाई करेगा, और वो विस्कस फोर्स जो है वो मैं डिफरेंट कलर से इंडिकेट करता हूं. तो विस्कस फोर्स जो अप्लाई करेगा ब्लैक कलर से मैं इंडिकेट कर रहा हूं, वो इस स्लैब के ऊपर अप्लाई होगा. एफ विस्कस, मैं इसको एफ वी लिख रहा हूं, एफ विस्कस फोर्स अप्लाई होगा. सो विस्कस फोर्स, आई एम राइटिंग विद द ब्लैक color, that about the viscous force exerted on a slab due to water. पानी की वजह से जो विस्कस फोर्स एक्ट होगा एफ वी इज गिवन बाय माइनस बी इंटू वी. दिस इज गिवन बाय, ये जो माइनस बी इंटू वी जो है ये है आपका स्टोक्स लॉ, गैब्रियल स्टोक्स लॉ का यूज किया हमने कि विस्कस फोर्स जो एक्ट होता है उसका फॉर्मूला गैब्रियल स्टोक्स लॉ और न्यूटन दोनों ने मिलकर बताया था. एफ वी विस्कस फोर्स इज माइनस बी इंटू वी, वेयर बी इज द कॉन्स्टेंट, where B is the constant for a given fluid. तो B जो है वो constant है, V for the velocity, V is the velocity of the slab. मतलब जरा समझिए velocity of slab, जरा इसकी मीनिंग समझिए कि अगर आपकी स्पीड अगर ज्यादा होगी तो विस्कस फोर्स भी आपका ज्यादा होगा. अगर आप स्लोली अंदर जाएंगे पानी के अंदर तो आपके ऊपर विस्कस फोर्स भी बहुत ही स्लो अप्लाई होगी, ये याद रखिएगा. तो विस्कस फोर्स जो है ना वो पूरी तरीके से अप्लाई होता है, विस्कस फोर्स वो स्पीड पे डिपेंड करता है. तो एक गैब्रियल स्टोक्स लॉ को अगर आप देखें तो उसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, F इज टू 6 पाई ईटा आर वी. तो यहाँ पे 6 पाई ईटा आर, इन आर तो ये था स्फेरिकल बॉल के लिए था. तो इन सभी चीज़ों को कांस्टेंट अगर करें तो F जो होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, बट डायरेक्शन उसके अपोजिट होता है, याद रखिएगा. अगर स्पीड आपकी नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ जाएगा. तो स्पीड एंड फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. ओके तो आपने यहाँ देखा कि इस सिस्टम में दो चीज़ें अप्लाई हो रही हैं. ओके दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, और आप देखेंगे वेयर द मोशन इज गोइंग एग्जैक्टली, स्लैब किस तरफ, ये दोनों फोर्सेस किस तरफ उसको एग्जर्ट कर रही है, ऊपर की तरफ लेके जा रही है. तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है ये एक सिस्टम है, एंड एफ बी डी ड्रॉ कर रहा हूं मैं. आई एम ड्रॉइंग एफ बी डी जिसका फुल फॉर्म है फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम. सो इस एफ बी डी में हमने एक चीज ऑब्जर्व किया कि ऊपर की तरफ है एफ स्प्रिंग जो उसको ऊपर की तरफ अप्लाई कर रही है, और एफ विस्कस फोर्स भी ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है. दो फोर्सेस जो है ऊपर की तरफ अप्लाई हो रही है, और एक्सटर्नल फोर्स जो इनको रोकने की कोशिश कर रहा है, ओके वो नीचे की तरफ है. ये है, इसको मैं डिफरेंट कलर का यूज करता हूँ. सो आई एम राइटिंग हियर द एफ एक्सटर्नल, ये है नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है. So finally you can see the total external force on a system
पूरे सिस्टम पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स जो होगा, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो दो चीज़ों से मिलके बना है। यहाँ पे टोटल एक्सटर्नल फोर्स पहला है एफ स्प्रिंग, स्प्रिंग का एक्सटर्नल फोर्स, प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय द विस्कस फोर्स, यानी लिक्विड जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। सो एक्सटर्नल फोर्स एफ, this is given by minus kx and here it is given by minus bv. okay, F is actually a ma, F is equal to ma होता है, ma लिख दिया, and this is minus kx, here it is minus bv. you can all shift the term to the left hand, आप इसको लेफ्ट की तरफ इसको शिफ्ट कर सकते हैं सभी को। जब आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे सो ma प्लस you can shift this into a kx, okay, kx, and also you can shift everything into the left part, you will get bv and that will be equal to 0. so I shifted all the terms to the left hand में shift कर दिया। और ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन फ्रेम करना है आपको। तो आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड एसएचएम, डैम्ड एसएचएम। So when we talk about the damped SHM, so acceleration क्या होता है एक्चुअली, d square x upon dt square होता है acceleration। velocity क्या होती है, dx upon dt is your velocity। ये दो चीज़ें अगर हम ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो आपको मिलेगा m, acceleration की जगह पे आप लिखेंगे d square x upon dt square प्लस b इंटू वेलोसिटी की जगह पे लिखेंगे आप dx बाई dt, ये आपकी वेलोसिटी, एंड फाइनली आपको मिलेगा kx इज इक्वल्स टू 0। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्ड SHM। ये डैम्ड SHM का डिफरेंशियल इक्वेशन बना स्टूडेंट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड डैम्ड SHM क्या होता है। डैम्ड SHM में हमने देखा कि हम जब भी स्प्रिंग को एक्सटेंड किए तो स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन की वजह से स्प्रिंग के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट होती है। एक तो स्प्रिंग की खुद की फोर्स है, प्लस जो सिस्टम है वो किसी एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर डिप्ट किया हुआ था, जिस वजह से उसके अंदर स्टूडेंट ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। सो डेफिनेशन क्या बना आपका इसके अंदर, डेफिनेशन हम कह सकते हैं डैम्प्ड SHM जो है इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन, ये एक ऑसिलेटरी मोशन है इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, किसी भी मोशन का जो एम्पलीट्यूड होता है ओके विल बी डिक्रीज्ड बाय applied, remember, external force। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स उसकी मोशन को डिक्रीज करती है। तो अगर हम इसके ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो आपको समझ में आएगा कि जो इसकी ग्राफ है वो कुछ इस तरीके की होगी। ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। आप ग्राफ को देखेंगे तो वाई एक्सिस जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इनिशियली जो ग्राफ जो है बहुत ही हाईएस्ट होगा, इसके बाद ग्राफ जो है वो डिक्रीज होते जाएगा, 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 डिक्रीज होते जाएगा। सो आप सभी एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ओके, याद रखिएगा। सो दिस इज समथिंग अबाउट अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ये तो यही था आपका थर्ड पार्ट ऑफ ऑसिलेशन विच इज नोन एज अ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये
आप लोग जरा इसे कॉपी कर लीजिएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन को, फिर हम आगे की तरफ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज, हम आगे के पार्ट स्टार्ट करते हैं और वो होता है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला होता है, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो फ्री वाइब्रेशन होता है। फ्री वाइब्रेशंस, फ्री वाइब्रेशंस अभी मैंने आपको बता देता हूँ। वैसे भी जैसे सपोज कर लीजिए ये एक सपोर्ट है और यहाँ से मैंने एक धागा बांधा, थ्रेड टाई किया है और लोअर एंड पे एक बॉब है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इज अ बॉब, और हमने इसको एक बार यहाँ से डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद ये जो है वो मूवमेंट कर रहा है। तो ये जब मूवमेंट करेगा तो उस मूवमेंट को हम कहेंगे, यहाँ जो मूवमेंट होगा उसका, तो इस मूवमेंट को, ये जो मूवमेंट हो रही है लेफ्ट और राइट की तरफ, कभी राइट जाता है कभी लेफ्ट की तरफ मूव करता है, so this type of vibration is called as a free vibrations. So what can be a definition of free vibrations? So if a body is displaced once from its equilibrium position, इसको एक बार अगर हम इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दे, मूव करवा दे, then vibrations done by a bob is called as free vibration. उसी को कहते हैं हम लोग free vibration. Remember, यानी फ्री वाइब्रेशन के केसेस में पार्टिकल जो होता है अपने ही ऑसिलेशन, अपना ही फ्री स्टेट में मूव करता है, और उस समय जो उसका टाइम पीरियड होता है, कितना टाइम लेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g, या फ्रिक्वेंसी जो होगी वो 1/2π√g/L होगा। इसका ठीक उल्टा होगा, यहाँ पे ये उसकी फ्रिक्वेंसी होगी जो कि फिक्स्ड होगी। इट इज फिक्स्ड, सो इट हैज फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी से मूव करेगा। ये तो ये हुआ फ्री वाइब्रेशन। सेकेंड वन टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज फोर्स्ड वाइब्रेशन। फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन के केसेस में क्या होता है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है। फोर्स्ड वाइब्रेशन में ये होता है कि इन अबव केस, इन अबव एक्सपेरिमेंट आप देखेंगे, बाय चेंजिंग अप्लाइड फोर्स, अगर हमने अप्लाइड फोर्स को चेंज कर दिया, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को चेंज करने से फ्रीक्वेंसी जो होती है बॉडी की, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बॉडी ऑल्सो चेंजेस, ये भी चेंज हो जाता है, या तो बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है, ऑल्सो चेंजेस। देन दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन is known as forced vibration. इसे कहते हैं forced vibration। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, जैसे अप्लाइड फोर्स जो है, अप्लाइड फोर्स वो मैंने 20 न्यूटन अप्लाई कर दिया, लेकिन नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो थी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, that was natural frequency f, it was just a 21 न्यूटन। तो 1 न्यूटन का डिफरेंस आने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी।
तो उस ऑन दैट टाइम जब 21 न्यूटन की फोर्स के बजाय मैंने 20 ही न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, कम अप्लाई किया, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी और ऐसे वाइब्रेशंस को हम कहते हैं फोर्स्ड वाइब्रेशन। याद रखिएगा, ये होती है आपकी फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो अब एक चीज़ एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल ऐसा है कि हमने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया है। सो दिस इज द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में हमने 4 पेंडुलम्स को टाई किया है। पेंडुलम ए, द अनदर पेंडुलम इज बी पेंडुलम, then we have a pendulum C, and finally we have a pendulum D. This is the pendulum D. अब आप देखें इन पेंडुलम को, तो हमने इनके लोअर एंड पे एक बॉब अटैच किया है। सो लेट अस अज्यूम वी हैव अटैच्ड अ बॉब, here also we have attached the bob, here also we have attached the bob, and here also we have attached the bob. ओके देखिए स्टूडेंट, लास्ट लिखिएगा, बड़े मजेदार चीजें हैं ये, चीजें ध्यान से सुनिएगा बस। दिस इज द पेंडुलम ए, इसका नाम बी रखा है, इसका नाम सी रखा है और इसका नाम डी रखा है। बी जो है वो शॉर्टर है लेंथ में, और डी जो है वो लॉन्गर है, लॉन्गेस्ट है। ये ए एंड सी जो है ये दोनों के दोनों सेम लेंथ हैं, इनकी लेंथ हमने सेम रखी है, सेम लेंथ। जो ए वाला पेंडुलम है इसे हम रखते हैं नाम ड्राइवर पेंडुलम। रिमेंबर, दिस इज नोन एज अ ड्राइवर पेंडुलम। अब होता क्या है कि अगर हम ए को वाइब्रेट करें, मैं जो इसको ना एक हल्का सा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और डॉटेड लाइन ये बता रहा है कि हमने ए को आपने हल्के से मूव किया। अब ए को मूव करने की वजह से ए जो है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब ए का जो वाइब्रेशंस होगा लेफ्ट, राइट और लेफ्ट की तरफ, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ए के वाइब्रेशंस की वजह से कुछ समय बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि बी भी वाइब्रेट करने लगेगा, सी भी वाइब्रेट करने लगेगा और डी भी वाइब्रेट करने लगेगा। ये तीनों के तीनों वाइब्रेशंस करने लगेंगे, रिमेंबर दिस। और खास बात यह है कि ए और सी, फर्स्ट और थर्ड, जो कि ब्लैक पेंडुलम्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेंगी, क्योंकि ए से निकली हुई एनर्जी जो है वो बी की तरफ ट्रांसफर हो रही है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो एनर्जी जो है वो ए वाली एनर्जी जो है वो बी के पास ट्रांसफर हो रही है, सी के पास ट्रांसफर हो रही है और डी के पास ट्रांसफर हो रही है। इन तीनों में से सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब जो कर रहा है वो है सी, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि C वाला जो है इसकी लेंथ A वाले से इक्वल है। इक्वल लेंथ होने की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। C की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो सेम होगी। C की फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह, ट्राई टू अंडरस्टैंड, C की फ्रीक्वेंसी सेम होने की वजह से ओके, A की पूरी एनर्जी C जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है C करता है, इसीलिए A का टाइम पीरियड या A की फ्रीक्वेंसी C के साथ मैच करती है। लेकिन B जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर लेंथ है। अब आप मैथमेटिकल भी यहां देख सकते हैं ऊपर की तरफ कि फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ का जो होता है वो इनवर्स रिलेशन है। अगर आपकी लेंथ शॉर्टर है तो फ्रीक्वेंसी आपकी मैक्सिमम होगी। इसका मतलब ये होगा कि B के पास सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी, और D की फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी होगी, इट विल बी हैविंग अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी। तो D की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी
और बी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी और सी की फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो इससे तो एक चीज कंफर्म है कि सी पेंडुलम जो है, पेंडुलम सी जो है वो रेजोनेंस में मूव कर रहा है। रेजोनेंस का मतलब होता है ऐसा वाइब्रेशन जिसमें इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो। सो इक्वल फ्रीक्वेंसी हो, रिमेंबर दिस। ओके, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी सी एंड फ्रीक्वेंसी बी एंड फ्रीक्वेंसी डी जो है, बी एंड डी ये दोनों जो हैं वो फोर्स्ड वाइब्रेशन में मूव करेंगे, फोर्स्ड वाइब्रेशंस में मूव करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है बाकी सबसे। तो एक चीज आपने तो देखा स्टूडेंट, हमने तो मूव सिर्फ ए को किया था, ए को वाइब्रेट करने की वजह से बी भी वाइब्रेट होने लगा, सी भी वाइब्रेट होने लगा, डी की वाइब्रेट होने लगा। एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बी को, फिर एनर्जी सी को ट्रांसफर हुई, लास्ट में डी को ट्रांसफर हुई। और इन सभी के प्लेन जो है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो है वो एक दूसरे से पैरेलल होंगे। याद रखिए, एक दूसरे से पैरेलल ही ये वाइब्रेट करेंगे। और क्योंकि ए और सी की लेंथ इक्वल होने की वजह से इनकी फ्रीक्वेंसी सेम निकली और बी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा निकली। सो फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम बी का निकला और डी की फ्रीक्वेंसी जो है वो लो निकली। सो डी की फ्रीक्वेंसी सबसे लो निकली। ओके स्टूडेंट्स, so this was something about, I taught you the types of vibrations. So दो vibrations बताया, free vibration, forced vibration, and third vibration है resonance. So third type of vibration इसे कहते हैं resonance. रेजोनेंस की खास बात ये होती है कि एक ऐसा वाइब्रेशन है रेजोनेंस, दिस इज द रेजोनेंस। ये एक ऐसा टाइप ऑफ वाइब्रेशन है जिसमें अप्लाइड फोर्स जो होता है, अप्लाइड फोर्स, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एग्जैक्टली इक्वल होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और इस रेजोनेंस की मतलब इस वाइब्रेशन की खास बात ये भी हो जाती है कि इस वाइब्रेशन में बॉडी जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। तो एम्पलीट्यूड जो होती है बॉडी की वो सबसे ज़्यादा होती है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। याद रखिएगा, ये खास बात होती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस, रिमेंबर। सो रेजोनेंस इज द थर्ड टाइप ऑफ वाइब्रेशन जिसमें अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी के इक्वल होती है। बॉडी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो था जैसे आप लोगों के मेडिकल साइंस में यूज होता है स्फैग्मोमैनोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, स्फैग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर जैसा प्रोनाउंसिएशन करें। सो स्फिग्मोमैनोमीटर जो ब्लड प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रेडिशनल वे होता था, वो जो पंपिंग होती थी, वो पंपिंग से जो मर्क्यूरी का लेवल जो चेक करते थे, जो हाई एंड लो, तो वो स्फैग्मोमैनोमीटर या स्फिग्मोमैनोमीटर आप कहिए। वो और भी हैं बहुत सारे, जैसे स्टेथोस्कोप होता है, स्टेथोस्कोप से डॉक्टर जो होते हैं आपके हार्ट बीट जो होती है वो हार्ट बीट को जज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, अपने ईयर में, कान में सुन लेते हैं वो। अगर वो हार्ट बीट क्लियर आती है, कफ वगैरह होती है तो क्लियर नहीं आती है, तो उससे उनको पता चल जाता है। तो ये है रेजोनेंस। इसकी डिटेल्ड हम स्टडी करेंगे हमारे अगले टॉपिक में, वेव ऑप्टिक्स टॉपिक में, और रे ऑप्टिक्स भी हैं, तो वेव ऑप्टिक्स में हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ योर ऑसिलेशन टॉपिक स्टूडेंट्स। प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको ये चैप्टर ऑसिलेशन। एंड द नेक्स्ट सेशन विल बी अ न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस ऑसिलेशन। हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे अगले ऑसिलेशन। ओके, सो टिल दैट स्टूडेंट्स, गुड बाय।